transform. We want to discuss 5.1 introduction to Z transform, representation of sequence. I am repeating this due to the symbol. Okay, so you cannot confuse about the symbol. So I repeat it, introduction to Z transform and representation of sequence. You can see here introduction to Z transform. I already mentioned that this transformation for the discrete type of data. Okay, because if you have no continuous data, then you can go with the Z transform. Okay, then what is the representation of sequence? Okay, this is the new symbol in our discussion. It is the UN and we take the n is variable. Okay, in our new symbol, keep in your mind, f of k is new sequence. That means u becomes f and n becomes k. So sequence f of k is an ordered list of real or complex number. So please keep in your mind, this is the change in our discussion. Okay, f of k is your sequence now. So all the members of a sequence can be listed as follows. Means if you have sequence like this, 10, 5, 2, -1, -3, -2, 1, 4. This is given one sequence. Here you can see here there is an arrow below the 10. How we can represent it? It gives the sequence starts from here and this is the initial step, means 0 position, means the symbol arrow is used to denote the term in 0 position, means when you put k is equal to 0, then it gives 10. Understand? Any confusion, student, up to here? No, sir. पक्का? यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, अब हम सिंबल हमने चेंज कर दिया है क्योंकि ये एफ ऑफ के वन बुक के हिसाब से हम चलेंगे. ओके, तो एफ ऑफ के जो हमारा प्रीवियस था यू ऑफ एन, नाउ यू बिकम्स एफ एंड एन बिकम्स के. कीप इन योर माइंड, एंड एग्जाम में भी यही सिंबल के साथ डील करेंगे, इसलिए आपको अभी बोल रहा हूँ मैं. ओके, सो डोंट फॉरगेट इट. नाउ 0 पोजीशन हमने फिक्स कर दिया कि एरो जिस टर्म में दिया होगा दैट इज योर 0 पोजीशन टर्म. दैट मीन्स k is equal to 0. K is an index of position of a term in this sequence. Now what about g of k? You can see here g of k 10, 5, -1, -3, -2, 1, 4. Both sequence are same but the position will be changed, means 0 position is now 2. Understand? Okay, so this is the 0 position, so both are different due to signal processing. Okay, here 2 is the position at k is equal to 0. Keep in your mind. Now two sequences f of k and g of k have the same terms but these sequences are not identical same as the 0th term. Okay, मैंने जैसे बताया आपको f of k and g of k दोनों सेम है बट डिफरेंट क्या है वो दोनों में? डिफरेंट ये है कि दोनों का 0 टर्म k इज इक्वल टू 0 वाला टर्म दोनों का डिफरेंट है. दैट्स व्हाई बोथ आर डिफरेंट. ओके, इफ द सिंबल इज नॉट गिवन, अगर आपको सिंबल नहीं दिया गया है तो व्हेन आई कैन स्टार्ट. सो k इज इक्वल टू 0 इज योर लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स 10 इज यूजुअल कंसिडरेशन, मीन्स 10 को हम क्या बोल देंगे? k इज इक्वल टू 0 पोजिशन. अगर एरो नहीं दिया है तो, अगर एरो दिया है तो दैट विल बी k इज इक्वल टू 0 टर्म. ओके, इफ द सिंबल इज नॉट गिवन देन लेफ्ट हैंड एंड टर्म इज कंसिडर्ड एज द टर्म corresponding to k is equal to 0. For example, you have f of k, sorry, h of k. Now we consider h of k. Okay, because we have already f and g. So h of k equal to -5, -3, 0, 1, 5, 100. Okay, if you have this sequence, then how we can start and how we can consider k is equal to 0 term? So this will be your k is equal to 0 term because there is no arrow in this sequence. Okay, so you have to consider -5 as k is equal to 0 position. Done? Any doubt up to here, student? Student? No, sir. No, sir. Okay, good. Thank you. Now, another way to express a sequence is to define the general term. Means ये क्या था कि हम term by term यहाँ पे हम consider कर रहे थे. First term था -5, -3, 0. Now, if you
represent in general way, then you can also write down the f of k. For example, f of k is equal to 1 upon 3 raised to k. Here there is no summation, but by Einstein convention rule, here k is equal to minus infinitive to infinitive. You can take it. Okay, so f of k is equal to माइनस इन्फिनिटी वाला टर्म डॉट 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 करके जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू माइनस 2, 1 अपॉन 3 रेज टू माइनस 1, यहाँ पे 1 बिकॉज 1 अपॉन 3 रेज टू 0, सो 3 रेज टू 0 विल बी 1, सो 1 by 1 विल बी 1, 1 अपॉन 3 रेज टू 1, 1 अपॉन 3 रेज टू 2 अप टू सो एट. मीन्स आपको बार बार हर एक टर्म को नहीं लिखना है, तो यू कैन डिफाइन इन general form also. Okay, there are two ways to represent a sequence. Number one, by term, and number two, in general form. Any doubt? Representation of sequence? No, sir. Okay. Now, what about the convergence and divergence? You already discussed in semester 1. Okay, you learn in semester 1 what is the convergence of a sequence and what is the divergence of the sequence. Okay, the definition will be remain same. So, if kth term of sequence f of k tends to finite value, वहाँ पे हम क्या लिखते थे कि जो sum s था finite value का, वो अगर आपका finite है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा. अगर वो नॉट फाइनाइट है तो वो डाइवर्जेंस हो जाएगा. तो इफ kth टर्म ऑफ सीक्वेंस f of k टेंड्स टू अ फाइनाइट वैल्यू एज k टेंड्स टू इन्फिनिटिव, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस सीक्वेंस, अदरवाइज डाइवर्जेंस सीक्वेंस. मीन्स अगर वो फाइनाइट वैल्यू के अकॉर्डिंग जा रहा है, तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस, और अगर वो कोई भी वैल्यू की तरह नहीं जा रहा है तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट. ओके, तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट में कोई डाउट स्टूडेंट? No, sir. Okay, now we go for the basic operation. I already discussed in last lecture. If two sequences are given, f of k and g of k be two sequences having the same number of terms, that is very important point, number of terms will be same. Okay, then how we can define addition? F of k plus g of k is equal to f of k plus g of k, means you can add both term by term. Okay, means if you want to add f and g, then 10 plus 10, 5 plus 5, 2 plus 2, minus 1 plus minus 1, minus 3 minus 3, minus 2 minus 2. Okay, you can add them term by term. That is the addition. Okay, scalar multiplication, you know about the scalar multiplication. If I want to find the 5 into f of k, then multiply each term by 5. Okay, that is your 5 f of k. That is the scalar multiplication. Means if you multiply by a f of k, then a f of k. Okay, and exam mein please don't forget to write in this way. Means this indicates this sequence. Means here you can see that curly bracket indicates the sequence. Okay, so whatever sequence is given, please write down in this way. Okay, if you forgot this, then you lose your marks. Okay, keep in your mind. Okay, so a f of k is equal to a f of k. Now linearity, if a and b are scalar, then a f of k plus b g of k is equal to a f of k plus b g of k. This the proof of this will be here. 1 minute. Okay, not here. Yes, this is the proof of this, but here symbol will be changed. This is your f of k and this is your g of k. Okay, Vn. Okay, so z of f of a f of k plus b g of k is equal to a z of f of k plus b g of k. Okay, so it is very simple. If you substitute in our definition, then separate both, then common outside the, you can put outside constant, then you can find the proof of that property. Understand? This is very simple. Okay, I will send you this copy. Okay, no problem. Okay, बहुत ही सिंपल है ये, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है, you can do it. Okay, so this is the linearity property.
a f of k plus b g of k, a f of k plus b g of k. Now what is the definition? We already discussed, but here in new symbol, f of k is a sequence defined for k is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2. That means both side minus infinity to infinity. Okay, so summation n is equal to minus infinity to infinity f of k z of k is called the two-sided or bilateral z transform of f of k and is denoted by z of f of k. In our notation we discuss with this un. Okay, z of un. In new symbol it is z of f of k or f bar z or fz, where z is complex variable. We already discussed this definition. Now one-sided. So if f of k is a casual sequence, means k is equal to 0, 1, 2 up to so on. Okay, if f of k is equal to 0 for k less than 0, means negative side will be 0, sequence will be 0, then z transform is called one-sided or unilateral z transform of f of k and is defined as z of f of k is equal to summation k is equal to 0 to infinity f of k z of z raised to minus k. Okay, and this is the न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स वो जेड ट्रांसफॉर्म कौन से रीजन में वैलिड है, मीन्स उसके अलावा आप कोई भी रीजन लेंगे तो वो जेड ट्रांसफॉर्म वैलिड नहीं होगा. इट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. द सीरीज summation n is equal to minus infinity to infinity f of k z raised to minus k, this is your bilateral z transform, will be convergent only for certain value of z. वो convergent होगा कुछ value के लिए. The region in which series is convergent is called the region of convergence of z transform. This is new for it and वो हमने किया है, लेकिन आपको सिर्फ देखना है. अगर पूछा जाए कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसका क्या है तो आप इजीली आप डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमने जो डिस्कस किया था उसी में आपको बता देता हूँ. यस, वी स्टार्ट विद दिस un इज इक्वल टू 1 से हमने z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था. तो जो लास्ट में हम कंडीशन लिख रहे थे ना, मॉड्यूलस ऑफ z ग्रेटर देन 1, दैट इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर. ओके, हमने किया है No, लेकिन sir. उसको उस टाइम पे हमने नहीं बोला था. दिस इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंट, यू कैन से ROC. ओके, region of convergent modulus z greater than 1. okay, same definition is here. वो जहां पर भी converge हो रहा है, if you see here, when if you not consider this modulus z greater than 1, then this term not defined. That's why it is the region of convergence. okay, उसके अलावा कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्जेंस इन दैट इंटरवल. डन? ओके, सो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. नाउ सी फर्स्ट एग्जांपल. दिस इज very simple example. Find the z transform of the sequence f of k. Here f of k is equal to 1 2 5 7 0 1. Here keep in your mind where is arrow. arrow कहाँ पे है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 पे है. ओके, तो उसको आपको k इज इक्वल टू 0 कंसिडर करना है. ओके, सो हियर स्टार्ट विथ लेट f ऑफ k इज इक्वल टू 1 2 5 7 0 1. ओके, नाउ व्हाट इज अवर डेफिनेशन? because here there is no negative term, you can see here in your given data. यहाँ पे 1 से 0 से स्टार्ट कर रहा है, 1 0 पे है. ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड तो है ही नहीं. सो वी यूज हियर यूनिलेटरल z ट्रांसफॉर्म. ओके, सो z ऑफ f of k इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f of k z रेज टू माइनस k. ओके, अब यहाँ पे देखो कितनी टर्म है, काउंट इट. 1 2 3 4 5 6. सो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज इन दिस वे ऑल्सो. दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0 टू 6. एम आई राइट? 6 टर्म आर देयर. 1 2 3 4 5 6. यस, सो f of k into z of minus k. okay, now I open it. if I open it, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो f of 0 z raised to 0 डन प्लस f of 1 z raised to 1 प्लस f of 2 z raised to 2 प्लस
f of 3 z raised to 3 plus f of 4 raised to -1 z yes power yes negative. yes negative है sorry z raised to -1 -2 -3 -4 plus f of 5. Okay, there is here we have consider only 5 term. Okay, because 0 is included na. Okay, so there is no 6 term, only 5. Hello, 0 1 yes सर ये yes मैं yes इसमें जो z ट्रांसफॉर्म है इसमें ऊपर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिखा है तो हाँ इसमें ये समेशन n इज इक्वल्स टू क्यों लिखा हुआ है एक k होना चाहिए ना हाँ यहाँ पे k होना चाहिए यस यू आर राइट यहाँ पे k होना चाहिए इंडेक्स इज k नाउ इंडेक्स इज k ओके सो वेरिएबल हमारा कौन सा है अभी k है एवरीवेयर यहाँ पर भी k आएगा हाँ यस गुड थैंक यू ओके यहाँ पर भी k आएगा क्योंकि नाउ इंडेक्स इज k सो कीप इन योर माइंड इंडेक्स इज k वेरिएबल हमारा कौन सा हो गया है k लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वेरिएबल क्या होता है t होता है ना तो यहाँ पे हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया अब k हो गया तो हम कुछ भी करेंगे वो k के साथ हमको करना है तो यहाँ पे देखो f ऑफ z यहाँ पे 5 तक ही जाएगा बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 ओके तो 5 टर्म्स आर देयर यहाँ पे देयर इज 5 ओके नाउ सब्स्टिट्यूट f ऑफ 0 मीन्स कौन बताएगा 1 so here I put 1 into 1 z raised to 0 means 1 so it is 1 okay plus f of 1 2 so 2 into z raised to -1 plus f of 2 5 into z raised to -2 okay then f of 3 7 into z raised to -3 then f of 4 0 so 0 into z raised to -4 plus f of 5 1 so 1 into z raised to -4 that's why this term will be comes out okay तो यहाँ पे देखो आप ये सीधा लिख दिया होता तो आपको नहीं पता चलता इसलिए थोड़ा मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया नाउ रीअरेंज ऑल टर्म्स in this way so 1 will be 1 2 by z 5 by z square 7 by z cube this will be 0 and 1 upon z raised to 5 this is your final answer this is the z transform of given sequence any doubt student okay it is very simple okay यहाँ पे आपको दूसरा रिप्रेजेंटेशन दिया है इसलिए ओके अब रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं चलो What is the regions of convergence in this example? तो focus on z. तो z के कौन से वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है वो फाइंड कर ले तो हमारा रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाएगा कौन बताएगा चलो बताओ इसका mod z greater than 0 नो mod z greater than 0 लेने की जरूरत है mod z greater than 0 मीन्स क्या कभी 0 तो नेगेटिव नहीं होगा ना mod z greater than 1 लेते हैं तो उसका मीनिंग होता है -1 लेस देन z लेस देन 1 लेकिन मॉड्यूलस ऑफ z ग्रेटर देन 0 हाँ तो उसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं है ना तो सर z greater than 0 z ग्रेटर देन 0 भी नहीं आएगा यू आर वेरी क्लोज ख्याति ओके व्हाट अबाउट अदर्स रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस आप तुरंत पकड़ सकते हो तुरंत ही पकड़ सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप ज्यादा मत सोचो कि ये कौन सी वैल्यू सॉरी z equal to 0 यस यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 रखने से प्रॉब्लम हो रहा है एम आई राइट यस और नो yes sir मीन्स z इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम्स इनफाइनाइट एम आई राइट yes sir yes तो उसके अलावा वाला ले लो मीन्स z नॉट इक्वल टू 0 दैट इज योर रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस अंडरस्टैंड स्टूडेंट yes sir या रिपीट करूं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम्स इनफाइनाइट दैट मीन्स इट इज डाइवर्जेंट अब डाइवर्जेंट हमको नहीं बनाना है हमको तो क्या चाहिए कन्वर्जेंस का रीजन चाहिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा दैट मीन्स z नॉट इक्वल टू 0 यस और नो तो दैट इज योर रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस देखो यार सेंटेंस में लिखा है कि रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस इज एंटायर z प्लेन except z is equal to 0 am I right
मीन्स आप z इज इक्वल टू 0 को नहीं ले सकते, उसके अलावा कुछ भी लेना है तो यू कैन टिक। डन? एनी कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. ओके, सो वी गो फॉर विथ जनरल टर्म। ओके, ये हमारा था वन रिप्रेजेंटेशन मीन्स इंडिविजुअल टर्म। नाउ वी गो विथ जनरल टर्म। ये भी हमने डिस्कस किया है, वहां पे हमने लिया था a रेज टू n। एम आई राइट? ओके, यू कैन सी हियर, मैंने ये भी डिस्कस किया था लेकिन आई रिपीट इट, a रेज टू n। ओके, यहाँ पे सिंबल थोड़ा चेंज है, अब हम ये a रेज टू k के साथ चलेंगे। k इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो z k इज ग्रेटर इक्वल टू 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखना पड़ा उनको? क्योंकि यू हैव टू गो विथ यूनिलिटरल z ट्रांसफॉर्म। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? बायलिटरल के साथ। यस, ओके। हाँ, एनी डाउट स्टूडेंट? कोई बोल रहा था? ओके, चल। z of f of k is equal to summation k is equal to 0 to infinity f of k z raised to minus k. Now replace f of k here. So it will be a raised to k into z raised to minus k. So if you open it with this type of, okay, आप इसको expand करेंगे ये टाइप से, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आएगा a raised to 0, you can put here a raised to 0 z raised to 0 plus a1 z raised to minus 1, and same way you can define. Okay, so a2 z raised to minus 2 third term आएगा, a3 z raised to minus 3 fourth term आएगा. Okay, so if you rearrange it in this way, so we can write 1 plus a by z plus a square by z square plus a cube by z cube up to so on. Now what is this? Here you can see here r is equal to a by z, right? And our first term will be 1. So 1 divided by the summation क्या होता है? तो 1 minus r, है ना? वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, आप भूल गए तो रिपीट कर देता हूँ। यस, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सीरीज है, तो उसका सीरीज सम क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर, जब a फर्स्ट टर्म होता है तब। If a is equal to 1, then the sum will be 1 upon 1 minus r. So simply you write down here 1 upon 1 minus r. Here r is equal to a by z. So I put here r is equal to a by z. And r less than 1, modulus r less than 1 is the convergence. Okay. So here 1 upon 1 minus a by z को आप simplify करेंगे, LCM लेंगे, तो z upon z minus a is your final answer of z transform. And here you can separate it in this way, 1 upon z is equal to a divided by modulus of z less than 1. If I shift modulus z as right side, so I get modulus z greater than modulus a, and that is your region of convergence, ROC. Then any doubt in this example, student? No, sir. What about other student? ये हमने पहले किया है, लेकिन वी गो विथ u ऑफ n. ओके, तो un के साथ किया था, यहाँ पे हमने f ऑफ k के साथ किया. ओके, Sir, यस यस, region z not equal to a रखे तो भी चाहे? नहीं 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 चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? उसका रीजन देखो, आप z नॉट इक्वल टू a लिखेंगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन निकालो. मॉड्यूलस z ग्रेटर देन मॉड्यूलस a, व्हाट इट सजेस्ट? Z must be greater than a. यहाँ पे दो हो सकता है, एक z ग्रेटर देन मॉड्यूलस है एंड माइनस z ग्रेटर देन मॉड्यूलस है. एम आई राइट? Yes, sir. तो इसमें a है ही नहीं, वो पूरा इंटरवल से जा रहा है. देखो आप यहाँ पे इस तरीके का अगर लाइन है तो ये इसके अलावा सारा आएगा, इस तरीके का सजेस्ट कर रहा है ना हमको. यू कैन सी हियर. Yes, sir. ओके, तो वो एक वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं, वो इंटरवल है. अंडरस्टैंड? Okay, sir. Got it? That's why we cannot write down z not equal to a. Okay, this is the region of convergence. Okay, we go with first example. चलो नोटबुक निकालो सब लोग. Find z transform of the following sequence.
एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1 2 5 7 0 1। ओके, इसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके सर इसमें अगर हमारा जीरोथ टर्म 1 है तो हाँ फिर हम फर्स्ट टर्म हमें फिर वो तो फिर हमें नॉर्मल सीक्वेंस के जैसे 1 को ही लेना पड़ेगा ना, जो फर्स्ट मतलब 2 के जो लेफ्ट में है। क्या क्या मुझे नहीं पता चला, सॉरी। और अगर इसमें हमारा जीरोथ टर्म 1 है हाँ यस, तो हमारा फिर इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा ही नहीं ना, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो ना। दिस ऑल आर नेगेटिव, मीन्स ये अगर आपका जीरो है तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 -5 से और ये start -5 से। यस, सो आपका जो है यूनिलिटरल आप स्टार्ट करेंगे तो k इज इक्वल टू -5 to 0 तक ही जाएगा। ओके सर, डन? ओके सर, ओके, ओके। हाँ सर। simplify this only. Okay, you will get your answer. So I think this one is 1 into z raised to -5 plus 2 into z raised to -4 plus 5 into z raised to -3 plus 7 into z raised to -2 and z is सर -1 will be 0 and last one is z raised to 0, then it gives 1. Okay, तो इसको आप सर वो सिंपलीफाई, हाँ यस जेड रेस टू पॉजिटिव 5 नहीं आएगा सर, क्योंकि -5 नहीं होगा। यस यस, यू आर राइट, यस यस यस, गुड। ओके, -5 का वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका सीधा z रेस टू 5 आ गया, प्लस 2 z रेस टू 4 आ गया, प्लस 5 z रेस टू 3 आ गया, प्लस 7 z स्क्वायर आ गया, प्लस 1। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। वो -5 वाला मैं सोच रहा था कि कौन गलती कर रहा है, देखते हैं कितने लोगों ने किया था -5। सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा ध्यान रखना, नथिंग एल्स। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा स्पीड नहीं करना है, आराम से करना है। डन? तो एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल? ओके, अब व्हाट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस एग्जाम्पल? एनीबडी? सर कुछ भी ले सकते हो कि यस, में 1 ही आने वाला है। गुड गुड गुड, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, दैट मीन्स एंटायर जेड प्लेन, आई कैन से एंटायर जेड प्लेन। ओके, बिकॉज यहाँ पे देर इज नो एनी डिनोमिनेटर। आपको जब भी डिनोमिनेटर दिया है तब इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर भी नहीं है तो वो सब के लिए दिस इज द पोलिनोमियल। ओके, सो पोलिनोमियल तो एंटायर प्लेन पे ही वो कन्वर्जेंस हो जाता है। तो यू कैन सी हियर, ओके, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। और किसको जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। ओके, मैंने यही एग्जांपल आपको दिया था। ओके, सो एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि आप जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटिव इसमें रिप्लेस करेंगे तो इट बिकम्स इन्फिनिटिव, तो एंटायर जेड प्लेन आएगा, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर। डन? एनी डाउट स्टूडेंट इन दिस एग्जांपल? No, sir. Okay, now we discuss second example. F of k is equal to 1 2 5 7 0 1। ओके, तो यहाँ पे एरो कहाँ पे दिया है, 5 के साथ है। ओके, तो 5 के साथ एरो है तो हमारा ये k इज इक्वल टू 0 टर्म हो गया। ओके, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा, ये हमारा 1 2 3। तो हमारा समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, k इज इक्वल टू -2 to 3 f of k z raised to -k। ओके, यू कैन वेरीफाई हियर, यहाँ पे मैंने ओपन ही रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखो f of k इज इक्वल 1 2 5 7 0 1, तो z ऑफ f of k इज इक्वल टू -2 to 3 हो गया हमारा, मैंने लिखा वही है। अब इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट f of -2 आएगा, f of -2 विल बी 1, सो 1 into z स्क्वायर plus 2 into z plus 5 into z raised to 0
plus 7 into z raised to minus 1 plus 0 into z raised to minus 2 plus z raised to minus 3. It gives z square plus 2z plus 5 plus this is the 7 by z, this is 0 and 1 by z cube. ओके, अब इसके लिए भी आप देखो तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, यहाँ पे z डिनोमिनेटर में है तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो था ही, ओके, वो तो हमको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी वाला भी है. ओके, तो अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो पर भी वो डाइवर्जेंस हो जाएगा. तो ये जो ये पोलिनोमियल है वो z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट हो रहा है. तो वो दोनों ही पॉइंट हम निकाल देंगे. दैट इज अवर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. दैट मीन्स ROC इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? बाकी के कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है? ओके, गुड. ओके, थैंक यू. सो थिंक अबाउट थर्ड एग्जांपल, वो भी हमने कर ही दिया है पहले, b रेज टू k. ओके, हमने उसको a रेज टू n में किया था. यहाँ पे यू हैव b रेज टू k लेस देन 0. ओके, यहाँ पे k लेस देन 0 है. गुड. ओके, चलो उसके लिए सोचो तो क्या होगा. तो कौन सा वाला करना है वो? थर्ड वाला e रेज टू k. ओके, आई थिंक ख्याति तुमने पूछा था ना इक्वेशन मॉड्यूलस z ग्रेटर देन मॉड्यूलस a. यस सर. हाँ, तो वो क्या होगा, देखो मैं आपको बताना भूल गया, उस टाइम पे मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ था. मॉड्यूलस z ग्रेटर देन a के जगह पे आप ऐसे सोचो, मॉड्यूलस z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a. व्हाट इट्स रिप्रेजेंट? अगर मॉड्यूलस z इज इक्वल टू मॉड्यूलस a करता हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब सर हम z और ये a इक्वेशन की है, सर्कल है, आप देखो, हाँ है ना? Am I यस right? सर. तो अब ग्रेटर देन मॉड्यूलस a मीन्स क्या होगा? आउटसाइड हो जाएगा ना? यस सर. हाँ, तो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ज्योमेट्रिकली. अंडरस्टैंड? ओके सर. ये सर्कल के अंदर वो क्या है, डाइवर्जेंट है, लेकिन आउटसाइड द सर्कल वो कन्वर्जेंट है. गॉट इट? यस सर. ओके. सर उसका सर डाउट क्या था कि सीरीज में फर्स्ट टर्म 0 आ रहा था. किसमें? तो क्वेश्चन दिए थे ना आपने जो. हाँ, वो नहीं, तो वो तो बाद में करते हैं ना. वो मैंने बोला ना, क्योंकि अब हमारा ये सिंबल चेंज हो गया ना, इसलिए. यस यस. ओके, यहाँ पे k रेज टू p वाला जब आएगा ना तब हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे. डन? ओके ओके. यस यस. ये तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए उसने पूछा था ना कि सर ये z नॉट इक्वल टू a लेने से चलेगा कि नहीं. आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ओके ओके. अब b रेज टू k के लिए क्या मिल रहा है? ये तो तुरंत आ जाना चाहिए. ये तो आपका टाइम सेविंग चैप्टर है. ये यूनिट आपका बहुत टाइम सेव करेगा क्योंकि इसके सारे एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं. हो जाना चाहिए. एनीबडी डन इट? यस ईशान. सर माइनस इंफिनिटी को प्लस बी रेज टू -3z³ प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा. उसमें क्या आएगा देखो, यहाँ पे आप सोचो k लेस देन 0 मीन्स k लेस देन 0, 0 से एकदम नजदीक वाला लेस देन पॉइंट कौन सा हुआ? -1 हुआ. सो आपका जो समेशन है वो k इज इक्वल टू -∞ टू क्या हो जाएगा? -1 तक ही जाएगा. अंडरस्टैंड?
ईशान, Yes, sir. वही बोल. yes, f of k into z raised Sir, to is yes. sir, is Sir, it minus z upon b infinity minus to z? हाँ, 1 by 1 बोलो बोलो. so 1 upon vz minus infinity to 1 upon vz तक. 1 upon bz तक. No, Sir, B z upon upon b minus z, z Sir, upon Z upon B b का. minus z. yes, सही है. z upon b minus z और कन्वर्जेंस एरिया. वो भी 1 मिनट है. ओके, z अपॉन b माइनस z परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है. तो यू कैन सी हियर, जिसको भी नहीं मिला z है, greater than b. z नॉट ग्रेटर देन, लेस देन b आएगा. चेक इट, Yes, हाँ, sir. हाँ, Yes. that's it. है ना. Yes, sir. मॉड्यूलस z लेस देन मॉड्यूलस b आएगा. ओके, अब कैसे आया, जिसको नहीं मिला है, लुक एट हियर. ओके, यू कैन सी हियर b रेज टू k ना हमारा. यस यस, दिस इज योर एग्जांपल. f of k is equal to b raised to k less than 0. Okay, so z of f of k is equal to, is it visible? This file is visible or not, student? Yes, sir. Okay. Okay, z of f of k is equal to summation, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी टू -1. ओके, f of k z raised to minus k, समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1. अब मुझे क्या रिप्लेस करना था, f ऑफ k की जगह पे b रेज टू k. सो आई सब्स्टिट्यूट हियर b रेज टू k z रेज टू माइनस k. इफ आई ओपन दिस समेशन, देन फर्स्ट टर्म विल बी b रेज टू माइनस इन्फिनिटी. ओके, सो b रेज टू माइनस इन्फिनिटिव, z रेज टू माइनस इन्फिनिटिव. सो उसको तो हमको डॉट ही बताना पड़ेगा. अब उसके नजदीक वाले मीन्स -3, -2, -1 वाली टर्म अगर सोचे तो देखो यहाँ पे b रेज टू -1 वाली अगर सोचे तो b रेज टू -1, z रेज टू +1 हो जाएगा. उसके बाद आएगा b रेज टू -2 इंटू z रेज टू 2 हो जाएगा. ओके, प्लस b रेज टू -3 इंटू z रेज टू 3 हो जाएगा. ओके, एंड सो ऑन. मीन्स कहाँ तक, तो ये टर्म तक. अंडरस्टैंड, यहाँ तक पता चल गया. सर, यस यस, इस सब में हम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले डॉट और उसके बाद 3, 2, 1 नहीं आएगा. हाँ सही बात है आपकी, सही बात है. लेकिन एडिशन है तो मैं कहीं से कुछ भी लिख सकता हूँ ना, आगे पीछे कर सकता हूँ ना. तो मैंने इसीलिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यही लिखा है, देखो आप. लेकिन वो कहाँ आएगा, अब लास्ट में आएगा. हम क्या करते हैं, Yes, डॉट 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 नहीं कर देते. इन्फिनिटिव टर्म कहाँ पे, हम एग्जिस्टेंस है हमारे पास, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए उसको No. हम डॉट 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 कर देते हैं. तो मैंने क्या किया कि ये फर्स्ट टर्म के बारे में सोचा, लेकिन इट विल बी माय लास्ट टर्म. यस सर. तो Okay. सर ये हमारा जो समीशन का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर, तो हमारा a इनफाइनाइट नहीं आएगा. ए अपॉन, सॉरी, a ये तो है ही अपॉन नहीं. 1 माइनस आर. तो सर हमारी फर्स्ट टर्म तो इनफाइनाइट है. फर्स्ट टर्म इनफाइनाइट, देखो अब इसके बारे में सोचो, इनफाइनाइट है ही नहीं. ये तो बी रेज टू इन्फिनिटिव, जेड रेज टू इन्फिनिटिव है ना. अब इसका हमको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं पता है, व्हाट इट गिव्स. अभी वैल्यू क्या होगा वो हमको पता ही नहीं है, बिकॉज वी हैव नो एनी बी. गॉट इट. यस सर. ओके, वो इट शुड बी एनीथिंग. ओके, वो कुछ भी हो सकता है. वो अगर हमारे पास फिक्स हो जाता है, देन वी कैन से दैट इट विल बी इन्फिनिटिव. डन, यस सर. है ना. ओके ख्याति, नाउ एनी डाउट. नो सर. ओके, तो अप टू हियर एनी प्रॉब्लम किसी को भी. No, sir. ओके, हाँ. नाउ इफ यू थिंक अबाउट व्हाट इज अवर फर्स्ट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, तो दिस फर्स्ट टर्म इज a is equal to z by b. Am I right? Okay, so here I put a upon 1 minus r. So here z upon b divided by 1 minus r. And what is my ratio? Ratio is again z by b. है ना, clear? So here 1 minus z by b. So if I simplify it, then we get z upon b minus z, and this will be the convergence area. So modulus z less than modulus b. If I
put minus sign outside, then it will be z upon z minus b. It is related to our z upon z minus a form. Done? Okay. So what is our convergence area? So modulus z less than 1. So yes, यहाँ पे देखो क्या थी, यहाँ पे आया ना सर्कल, सर्कल मॉड्यूलस z इज इक्वल टू बी का इंटीरियर, जो वहां पे था वो एक्सटीरियर था, अब इसके अंदर वाले रीजन में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन बाउंड्री नहीं लेना है क्योंकि देयर इज नो एनी इक्वल टू. डन? ओके. एनी डाउट Yes, sir. स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम in this example? No, sir. Okay, shall we go for next example? Yes, sir. Okay. Yes. So our next example is, okay, it is very interesting example. F of k is equal to a raised to k, k greater equal to 0 and b raised to k. Here this function is looks like it, this. Okay, f of k is equal to, okay, a raised to k when k greater equal to 0 and b raised to k when k less than 0. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? आपका जो बायलिटरल है, ओके, जेड ट्रांसफॉर्म, उसमें आपको दो अलग अलग वैल्यू दिया है कि वो नेगेटिव साइड जो है वो b रेज टू k रिप्रेजेंट कर रहा है एंड पॉजिटिव साइड पे क्या वो कर रहा है, a रेज टू k. ओके, ट्राई इट. चलो इसको ट्राई करो, बाकी कुछ है ही नहीं. अगर ये पता चल गया है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका इजी हो जाएगा एग्जाम्पल. सर इसमें ऐसा कह सकते हैं कि उसका टोटल डोमेन और पॉजिटिव टर्म्स आएगा कंबाइंड. Domain? हाँ, मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कॉन्वर्ट और z हाँ. का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाइक सब पॉजिटिव टर्म्स आएगा, ऐसा कह सकते हैं. हाँ, यहाँ पे नेगेटिव टर्म आएगा आपका z का पावर और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर. ओके, ये रहा हमारा एग्जांपल, है ना, हाँ, तीर. वो तो ओके, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा है ना ए से है. ओके, यहाँ पे इक्वल टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसलिए थोड़ा वो टाइप नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए ऐसे लिखा है. ए रेज टू के ग्रेटर इक्वल टू 0, बी रेज टू के लेस देन 0. ओके, अब ए बी पॉजिटिव है एंड ए लेस देन बी है, वो आपको दिया जाना चाहिए. ओके, क्योंकि विदाउट दिस वी कैन नॉट फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. डन? तो यहाँ पे देखो z ऑफ f ऑफ k क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ओरिजिनल हमारा डेफिनेशन है बायलिटरल का, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. नाउ आई स्प्लिट इट, मैंने अब इसको क्या किया, स्प्लिट कैसे किया, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 बिकॉज दिस इंडिकेट्स द k लेस देन इक्वल टू -1 तक जा रहा है. ओके, सो वहां पे मेरा f ऑफ k क्या है, b रेज टू k z रेज टू -k. Now if I go with positive side, then summation k is equal to 0 से स्टार्ट करके infinitive a raised to k z raised to -k. ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना वो है कि पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए. मीन्स k का आप दो बार कर रहे हो तो रिपीट नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, -1 to 0 एंड 0 to 1 करते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे 0 रिपीट हो सकता है, लेकिन समेशन में कभी रिपीट नहीं हो सकता है. keep in your mind, understand student? जहां पे यहाँ पे खत्म हुआ है उसके नेक्स्ट पॉइंट से यहाँ स्टार्ट हो जाना चाहिए, तब वो कंटिन्यूअस समेशन है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे आप 1 by 1 सब्सटीट्यूट करते जाओ. तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो क्या है कि बहुत दूर की बात है. ओके, तो वो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे. तो z b रेज टू -1 z रेज टू -1 है ना, -1. ओके, सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि जब नेगेटिव साइड है तब आपको नेगेटिव साइड माइनस इन्फिनिटी का लास्ट में सोचना है, पहले अपर से स्टार्ट करो. मीन्स आपको उस टाइम पे क्या करना है, -3 -2 -1 से भी जा सकते हो, या फिर -1 -2 -3 तरीके से भी लिख सकते हो. ये दोनों तरीके से लिख सकते हो, और बाकी के सारे के लिए डॉट डॉट डॉट. और अगर ये कर रहे हो तो आगे डॉट 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 आएगा. अंडरस्टैंड? ओके,
ये दोनों तरीके से आप सोच सकते हो कि k जब -1 -2 -3 होगा तब भी चलेगा, और डॉट 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 k इज इक्वल टू -3 k इज इक्वल टू -2 k इज इक्वल टू -1 लिखेंगे तो भी चलेगा। मीन्स यही एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखेंगे तो पर भी वैलिड है, प्लस जेड बाई बी क्यूब प्लस जेड बाई बी स्क्वायर प्लस जेड बाई बी, ओके, बोथ आर सेम। डन। प्लस करके इसके बारे में लिखेंगे तो ये प्लस करके 1 प्लस ए बाई जेड प्लस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब व्हाट इज दिस? इट इज अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज एंड इट कैन बी रिटन एज दिस वे, ओके, z by b upon 1 minus z by b, the sum of the series, plus 1, first term will be 1, so 1 upon 1 minus a by z। ओके, अब फर्स्ट के बारे में सोचो तो फर्स्ट का वैलिडेशन क्या है? तो इट विल बी मॉड्यूलस ऑफ z by b लेस देन 1, एम आई राइट? एंड सेकंड के लिए वैलिडेशन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ a by z लेस देन 1। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बता दो, आई विल रिपीट। स्टूडेंट, एनी डाउट अप टू हियर? बाय बी स्क्वायर की जगह पे वहां पे सीरीज के ऊपर जेड स्क्वायर और जेड क्यूब आना चाहिए ना वेयर? सर? जहाँ पे हमने सीरीज को ओपन किया है वहाँ पे सर हाँ। जेड बाई बी प्लस जेड बाई बी। यस 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 यस, यहाँ पे जेड स्क्वायर और जेड क्यूब आएगा। सही है सही है सही है, ये गलती से हो गई। एग्जांपल में भी सेम। हाँ हाँ, सेम सेम सेम, यहाँ पर भी सेम आएगा, जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। डन, ओके। हाँ, अब उसके अलावा कोई डाउट? सही है आपकी बात, यू आर राइट। कन्वर्जेंस में कोई डाउट? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है बिकॉज जेड लेस देन 1 इसका हमारा कन्वर्जेंस है, और इसका भी a बाई जेड लेस देन 1 कन्वर्जेंस है, क्योंकि डिनोमिनेटर वहीं पे डिफाइन हो रहा है। क्लियर? ओके, तो एनी डाउट अप टू हियर स्टूडेंट? प्लीज इन्फॉर्म मी। सर z बाय b ग्रेटर देन 1 होगा तो भी हमारा जो ये टर्म है वो भी वैलिड ही है ना? नहीं 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 होगा ना, क्योंकि मॉड्यूलस जेड बाय, हम देखो हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज हमको क्या सजेस्ट कर रहा था। देखो आप ज्योमेट्रिक सीरीज जब पढ़ रहे थे तब ये आपको दिया था कि मॉड्यूलस आर शुड बी लेस देन 1, तब जाके ये होगा ना, क्योंकि 1 माइनस आर में अगर आप आर ग्रेटर देन 1 लेंगे तो वो तो नेगेटिव साइड चलता जाएगा। यस ओके, सर। हाँ, और वो वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना? क्लियर? तो सर हमारे पास यहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनिट टू -1 है, तो यहाँ पर माइनस के साइड जाएगा ये जेड ट्रांसफॉर्म, तो भी ये आंसर तो सही है ना? नहीं नहीं नहीं, आंसर सही। देखो यहाँ पे आप उस तरीके से मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे जो जा रहा है वो नेगेटिव साइड जा रहा है, लेकिन ये सीरीज पॉजिटिव साइड जा रहा है। देखो, क्योंकि z का पावर इंक्रीज हो रहा है, अंडरस्टैंड? यस सर। क्योंकि आप नेगेटिव साइड को यहाँ पे z रेज टू माइनस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z रेज टू इन्फिनिटी हो रहा है। गॉट इट? दैट Yes, मीन्स इट मूव्स टू पॉजिटिव साइड, और ये जो है वो इट मूव्स टू नेगेटिव साइड, बट द रिफ्लेक्शन ऑफ r विल बी पॉजिटिव हियर, यू कैन सी हियर। ओके, मीन्स अगर आप r जो रेशियो है वो बड़ा होता जा रहा है, और यहाँ पर भी r का रेशियो जो है वो बड़ा होता जा रहा है, दोनों में प्रॉब्लम तो सेम ही जा रहा है। अंडरस्टैंड? फ्रीक्वेंसी अगर आप सेट करेंगे तो दोनों का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल सकता है। गॉट इट? यस सर। ओके, तो यहाँ पे z बाई बी अपॉन 1 माइनस जेड बाई बी, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस ए बाई जेड। अब कोई डाउट है किसी को? सो आई गो विथ नेक्स्ट स्टेप। एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। Okay, so okay, so we simplify this term, so we get z upon b minus z plus z upon z minus a। so यहाँ पे आप इसको simplify करेंगे, so it gives the modulus of z greater than a, and अगर आप इसको simplify करेंगे तो modulus z less than modulus b होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे a and b हमने पॉजिटिव ले ही लिया है तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मॉड्यूलस जेड ग्रेटर देन ए एंड मॉड्यूलस जेड लेस देन बी हो गया। नाउ इफ आई मर्ज बोथ दिस थिंग्स, सो आई कैन राइट ए लेस देन मॉड्यूलस जेड लेस देन बी।
ओके। और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आगे लिख दिया मैंने z अपॉन z माइनस है, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला, सो इट गिव्स माइनस z बाई z माइनस b। ओके, सो यहाँ पे हमारा दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। एनी डाउट? नो सर। ओके, अब यहाँ पे अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखें ना तो ये एन्युलस रीजन है। एन्युलस रीजन कैसे होता है, यहाँ पे देखो आप पोलो खाते हैं ना, पोलो की तरह, मीन्स ये जो सर्कल है वो मॉड्यूलस z इज इक्वल टू a है। ओके, यस, एंड दिस सर्कल विल बी मॉड्यूलस z इज इक्वल टू b। तो ये दोनों के बीच का जो रीजन है ना, दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस एग्जाम्पल। अंडरस्टैंड? क्लियर स्टूडेंट? ये जो है दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। नहीं आउटसाइड नहीं होगा, इनसाइड नहीं होगा। ओके, तो ये जो है दोनों के बीच का, अगर आप पोलो खाते हैं तो जो पोलो में जो आपको दिया जाता है ना, दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस एग्जांपल। डन? ओके, एनी डाउट इन एग्जांपल नंबर 4? नो सर। ओके, ट्राई फॉर एफ ऑफ के इज इक्वल टू के। चलो एफ ऑफ के इज इक्वल टू के के लिए ट्राई करो जल्दी। हाँ, वी हैव ओनली 2-3 मिनट्स। एंड इन एज पर आवर प्रेजेंटेशन दिस विल बी योर एन, जो हमने फाइंड करने के लिए दिया था ना, un is equal to n था ना, तो if in our symbol we can write f of k is equal to k। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया फिर से। f of k is equal to k दिया है ना आपको, k greater equal to 0। नाइनटीन EC 021 चिंतन, आर यू डूइंग इट? नाइनटीन EC 021। सर इसमें ऊपर एपी हो रहा है, नीचे जीपी हो रहा है। ऊपर एपी हो रहा है, नीचे जीपी हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उसमें नहीं, आपको एक ही चीज करना है, उसमें से 1/z कॉमन निकाल के देखो, चेक करो तो ऑटोमेटिक जीपी हो जाएगी। डन डन। ओके, लुक एट हियर, ऑल स्टूडेंट कैन वेरीफाई हियर। अगेन दिस इज योर एग्जांपल, f of k is equal to k greater equal to 0। so here k greater equal to 0 itself suggests that unilateral। ओके, तो यहाँ पे k is equal to 0 से हम स्टार्ट करेंगे। so z of f of k is equal to summation k is equal to 0 to infinitive f of k z raised to minus k। okay, here f of k is k, so I write down here k into z raised to minus k। if I simplify this, so we get 1 upon z plus 2 upon z square plus 3 upon z cube up to 7। अब इसका सीधा हम कुछ भी नहीं लिख सकते, तो I think about the 1/z। so 1/z को मैंने क्या किया, हर एक टर्म में है तो उसको कॉमन निकाल दिया, 1 upon z। ओके, तो अब क्या बचा, फर्स्ट टर्म विल बी 1 plus 2 1/z plus 3 1/z होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, अब ये हमारा कैसे हो गया, तो आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया है ना। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या था हमारा, a यहाँ पे 1 - a raised to b या फिर n करो। चलो,
यहाँ पे n नेगेटिव है, तो उस टाइप का ये फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे 1/z मैंने बाहर लिख दिया एंड 1 - 1/z रेज़ टू -2 हो गया। ओके, क्योंकि 1 + 2 + 3 अप टू सो एंड इट सजेस्ट दैट रेज़ टू -2। ओके, इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, तो इट गिव्स 1/z z - 1/z रेज़ टू -2। ओके, तो यहाँ पे इसको उल्टा करो पहले, तो 1/z, सो इट गिव्स z² z - 1 होल स्क्वायर। Now 1z will be cancel out, so we get z/z - 1 whole square. And what is the region of convergence? Okay, so यहाँ पे 1 - 1/z रेज़ टू -2 है, तो इसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो we restrict 1/z लेस देन 1। ओके, so 1/z लेस देन 1 gives मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये सर्कल के बाहर चला गया, so ROC is मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 1। Any doubt in this example? सिर्फ इसके बारे में आपको सोचना है कि ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, चलो मुझे देख के बताना। उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यू कैन वेरीफाई विद दिस। ओके, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये, a + b रेज़ टू n, हम ऐसे लिखते हैं a + b रेज़ टू n। ओके, इज इक्वल टू जो भी आता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको मिलेगा 1 - 1/z रेज़ टू -2। डन? एनी डाउट स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके ओके, पूरे लेक्चर में कोई डाउट है किसी को भी? एनीबडी हैव एनी डाउट ऑफ दिस लेक्चर और ऑफ दिस सेशन? थोड़ा आज हमने क्या किया,